Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in today's lecture, I will explain snapshot first chapter. And name of first chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, written by the writer William Saroyan, who was born in 1908. He was American novelist, playwright, and a short story writer. And he was also awarded by Pulitzer Prize for Drama in 1940. Now I will tell you about introduction of the chapter and characters of the chapter. Firstly, message. The primary message of this story. Which story? The Summer of the Beautiful White Horse. The primary message of this story is that despite social और इकोनॉमिक चैलेंजेस, कि हमारे लाइफ में सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस आने के बावजूद भी देयर आर सम ट्रूथ्स विच आर एब्सोल्यूट एंड शुड बी प्रैक्टिस्ड अंडर एंड ऑल कंडीशंस। कुछ ट्रूथ होती हैं जिनको हमें क्या करना होता है, हर हाल में फॉलो करना होता है, जैसा कि इस चैप्टर में विद एग्जांपल शो किया गया है। द स्टोरी इज सेट विद इन अ फैमिली दैट इज पुअर। एक फैमिली को दिखाया गया है जो बहुत ही पुअर है। एंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर शोज दैट इन दिस चैप्टर a white horse is described and the setting of this chapter is in summer time. Now characters of the chapter. First is Aram. Aram, he is narrator of the chapter. He is very kind hearted, honest and calm. Calm means peaceful. Next is Murad. Murad, he is cousin of Aram, having special approach to deal with animals. एनिमल्स को डील करने की उसके अंदर बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कंसिडर क्रेजी। क्रेजी मीन्स विम्सिकल और मैड। इसे पागल समझा जाता है। वो वैसे पागल नहीं है, लेकिन उनके उस ट्राइब में उसको क्रेजी समझा जाता है। जॉन बायरो। जॉन बायरो, ही इज द राइटफुल ओनर ऑफ व्हाइट हॉर्स। ये व्हाइट हॉर्स का रियल ओनर है। एंड नेक्स्ट इज खोसरो। खोसरो, ही वॉज फ्यूरियस इन टेम्पर, मीन्स उसका बहुत ही एंग्री नेचर होता है। इरिटेबल। इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ा होना। एंड पावरफुल। हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। So for better understanding, you can open your book. If you have book, then you can open. If you don't have book, then no problem. Listen carefully. Now, this story is about two poor Armenian boys. Armenian name of a language. ये स्टोरी है दो अर्मेनियन बॉयज की है। Who belong to a tribe. Tribe means कबीला, जो एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं। Whose hallmarks are trust and honesty. और जो ट्राइब है उसका हॉलमार्क, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि वो कैसे हैं, वो ट्रूथफुल है और ऑनेस्ट है। उस ट्राइब का कोई भी पर्सन है वो झूठ नहीं बोल सकता और सारे ऑनेस्ट हैं। उस ट्राइब का नाम है ग्रोवलेनियन ट्राइब। ग्रोवलेनियन ट्राइब का हॉलमार्क क्या हुआ? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रूथ। One day back, there in the good old days. This chapter is nostalgia. Nostalgia means it is a feeling of sadness mixed with joy and affection. Nostalgia का मतलब होता है कि एक sadness की feeling है जिसमें joy और affection होता है, and it is remembrance of some old and sweet memories. So this chapter is a nostalgia. Because that time our narrator Aram was 9 years old and his cousin Murad was 13 years old. So one day back there in the good old days when I was 9. Incident कब का है? When our narrator was 9 years old and the world was full of every imaginable kind of magnificence. और उस टाइम पे वर्ल्ड है वो उसके लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो एक बच्चा था उस टाइम पे, और बच्चे के लिए जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इमेजिनेशन होता है, तो वैसे ही नैरेटर के लिए भी था।
and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody, और उस वर्ल्ड में एक दिन क्या होता है, उसका ब्रदर, उसका कजिन मुराद, जिसको हर कोई क्रेजी मानता है, who knew him except me, लेकिन नरेटर उसको क्रेजी नहीं मानता, came to my house at 4 in the morning. मुराद है वो 4 o'clock मॉर्निंग में नरेटर के घर पे आता है, and woke me up tapping on the window, और नरेटर को उठाता है कैसे, नोकिंग करके, टैपिंग करके विंडो पे, ऑफ माई रूम, उसके रूम में। मीन्स यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि बहुत टाइम पहले जब नरेटर 9 years ओल्ड होता है, उस टाइम पे एक दिन नरेटर सो रहा होता है, तो उसका कजिन मुराद आता है, वो विंडो पे टैपिंग करता है और टैपिंग करके उसको उठाता है। टाइम होता है 4 o'clock in the morning. अरम, ही सेड, वो टैपिंग करके कहता है कि अरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अरम जंप करके उठता है और विंडो से बाहर देखता है। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा। अब अरम जो कुछ देखता है विंडो से बाहर, उस पे उसे बिलीव नहीं होता। तो ये भी बच्चों एक क्वेश्चन है कि अरम को मुराद पे बिलीव क्यों नहीं होता, किस बात पे नहीं होता। तो उसका आंसर भी आएगा, इट wasn't morning yet, but it was summer and with daybreak. Not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I wasn't dreaming. सुबह का टाइम था लेकिन समर टाइम था, इसलिए इतना भी अंधेरा नहीं था कि वो पहचान ना सके कि वो क्या देख रहा है। मीन्स इतनी लाइट तो थी कि वो देख सकता है और रियलाइज कर सकता है कि वो सपना नहीं ले रहा। माई कजिन मुराद वो सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। उसने क्या देखा कि उसका जो कजिन मुराद है वो व्हाइट हॉर्स पे बैठा है, और यही चीज उसके लिए अनबिलीवेबल थी। क्यों थी? क्योंकि वो ग्रोगलेनियन ट्राइब से बिलोंग करते थे और उनका ट्राइब है, इट वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, बहुत पुअर था, और इस कंडीशन में उनके लिए व्हाइट हॉर्स परचेज करना बिल्कुल ही इजी नहीं था, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। अब अरम अपना सिर विंडो से बाहर निकालता है और आईज रब करता है, रगड़ता है। वो क्यों? क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा, तो वो दोबारा से रब करके देखता है कि क्या रियल में वही चीज देख रहा है वो। यस, ही सेड इन अर्मेनियम, इट्स हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड। अब मुराद कहता है कि हाँ, तुम ड्रीम नहीं देख रहे, मैं व्हाइट हॉर्स पे हूँ, अगर तुम्हें राइडिंग करनी है तो जल्दी से आ जाओ। दोनों ही बच्चे हॉर्स राइडिंग का शौक रखते थे, और मुराद तो हॉर्स राइडिंग के लिए क्रेजी था, तो इसलिए मुराद है वो व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. यहाँ पे बताया गया है कि जो मुराद है वो अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहता है, वो अपनी हर इंजॉयमेंट को पूरा करना चाहता है, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुडेंट बिलीव, लेकिन इस बात पर उसे बिलीव हो ही नहीं रहा है कि वो एक व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। In the first place, my earliest memories had been memories of horse. अरम कहता है कि अगर उसकी मेमोरीज हैं तो उसकी मेमोरीज में सबसे पहला स्थान किसका है? हॉर्स राइडिंग का है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, डिजायर, लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, उसकी इच्छा भी क्या है? हॉर्स राइडिंग की है। मिस अरम है वो भी हॉर्स राइडिंग करना चाहता है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और सेकेंड थिंग वो बहुत ही पुअर थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। इसीलिए यही बात होती है कि उसे जो उसने बाहर देखा है उसमें बिलीव नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन था कि वो विंडो से बाहर जो देखते हैं उस पर बिलीव क्यों नहीं करता है। विंडो से बाहर क्या देखा उसने कि मुराद है व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है, उसे उस बात पे बिलीव क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका ट्राइब बहुत ही पुअर है, वो व्हाइट हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उसे इस बात पे बिलीव नहीं हुआ। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब
कौन सा ट्राइब? ग्रोगलेनियन ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोगलेनियन फैमिली, ग्रोगलेनियन एंड अर्मेनियन ट्राइब, ये अर्मेनियन ट्राइब था, कबीला था एक. फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. वो सबसे गरीबी की कंडीशन में जी रहे थे. नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर विलेज. कोई नहीं जानता था कि उनके पास खाना कहाँ से आएगा. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, इवन उनकी फैमिली के जो एल्डर पर्सन है उनको भी नहीं पता था कि उनके पास खाने के लिए खाना कहाँ से आएगा. वो इतने पुअर थे. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. इतने पुअर होने के बाद भी वो ऑनेस्टी के लिए फेमस थे. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. वो 11 centuries से अपनी honesty के लिए famous थे. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. वो जिस टाइम पे वो बहुत ही wealthy थे, rich थे, उस टाइम से लेके अब तक वो अपनी honesty के लिए famous रहे हैं. We were proud first, उन्हें proud पहले है, honest next, and after that we believed in right or wrong. उसके बाद वो right और wrong में believe करते हैं. None of us would take advantage of anything in the world, let alone steal. और उनकी फैमिली ऐसी फैमिली थी कि उसमें से कोई चोरी तो कर ही नहीं सकता. Consequently, as a result, इवन दाउ आई कुड सी द हॉर्स. इसके बाद भी उसने क्या देखा? एक हॉर्स को देखा, उसके ऊपर मुराद को देखा. सो मैग्निफिशिएंट, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शानदार लग रहा था. इवन दाउ आई कुड स्मेल इट, इवन अरम उसकी स्मेल को भी फील कर रहा था. हॉर्स की बात हो रही है यहाँ पे. सो लवली, इवन दाउ आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, हॉर्स की ब्रीदिंग को फील कर रहा था. सो एक्साइटिंग, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin मुराद. और उसे पता भी है कि उसका कजिन मुराद है, उसका व्हाइट हॉर्स से कोई भी मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली के और मेंबर हैं, उनका भी हॉर्स से कोई लेना देना नहीं है. asleep और awake, ना तो सोते हुए लेना देना है और ना ही जागते हुए. Because I knew my cousin मुराद couldn't have bought the horse. और उसे पता है कि उसका जो ब्रदर है, कजिन है, वो हॉर्स परचेज नहीं कर सकता. And if he couldn't have bought, यदि उसने नहीं खरीदा है, he must have stolen it. तो डेफिनेटली उसने क्या किया है? उसे चोरी किया है. And I refuse to believe he had stolen it. और इस बात पे उसे बिलीव नहीं होता कि उसने चोरी की होगी. क्यों नहीं होता बिलीव? क्योंकि उनका ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए फेमस था. उनके ट्राइब में कोई भी मेंबर है वो थीफ नहीं हो सकता. इसीलिए अरम को इस बात पे बिलीव नहीं होता कि वो चोरी कर सकता है. नो मेंबर ऑफ द ग्रोगलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ. ग्रोगलेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन देन एट द हॉर्स. पहले वो कजिन को देखता है. स्टेयर मीन्स गेज, घूर कर देखना. पहले मुराद को देखता है, फिर वो हॉर्स को देखता है. देयर वॉज ए पायस, पायस मीन्स सैक्रेड, होली, पवित्र. स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों में क्या थी? होलीनेस और ह्यूमर था. Which on the one hand delighted me, एक साइड तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था अरम को, and on the other side frightened me. अच्छा क्यों लग रहा था? क्योंकि वो भी हॉर्स राइडिंग करना चाहता है, उसके साथ जाना चाहता है. और वो डर क्यों रहा था? क्योंकि वो हॉर्स है, वो डेफिनेटली चोरी किया हुआ होगा, क्योंकि वो तो उसको खरीद नहीं सकते. मुराद, I said, where did you steal this horse? अब अरम विंडो से पूछता है कि तुमने हॉर्स कहाँ से चोरी किया. Leap out of the window, he said, if you want to ride. अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है तो जल्दी से आ जाओ. It was true, और ये रियल भी था कि उसे भी हॉर्स राइडिंग करनी थी.
ही हैड स्टोलन द हॉर्स, और ये भी ट्रू था कि उसने वो हॉर्स चोरी किया हुआ है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। मुराद वहां पे अरम को इनवाइट करने के लिए आया है कि उसे राइडिंग के लिए चलना है या फिर नहीं। अब वो जाएगा या फिर नहीं जाएगा ये उस पर डिपेंड करता है। Well, it seemed to me stealing a horse for a riding was not the same thing as stealing something else, such as money. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों कि हॉर्स की स्टीलिंग है वो स्टीलिंग क्यों नहीं थी, कि उन्होंने जो हॉर्स चोरी किया था वो चोरी क्यों नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हॉर्स को राइडिंग के लिए चोरी किया हुआ है तो वो चोरी नहीं है, और कब तक नहीं है, जब तक कि हम पैसों के लिए इसको बेच नहीं देते तब तक ये चोरी नहीं है, क्योंकि हमने इसको केवल हॉर्स राइडिंग के लिए चुराया था और पैसों के लिए उसको बेचेंगे नहीं, इसलिए हॉर्स जो स्टीलिंग थी वो एक्चुअल स्टीलिंग नहीं थी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, इसलिए ये स्टीलिंग नहीं थी। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. यदि कोई हमारी तरह क्रेजी है हॉर्स राइडिंग के लिए मुराद की तरह और मेरी तरह, तो उसके लिए डेफिनेटली हॉर्स स्टीलिंग नहीं थी। I wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, और कब तक स्टीलिंग नहीं थी, जब तक कि हम पैसों के लिए इसको बेच नहीं देते तब तक ये स्टीलिंग नहीं थी। विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और ऐसा हम करेंगे नहीं, इसलिए हॉर्स स्टीलिंग है वो स्टीलिंग नहीं थी। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मुझे कपड़े पहनने दो, अरम कहता है। ऑल राइट ही सेड बट हरी। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स, वो अपने क्लोथ्स पहनता है। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, यार्ड मीन्स कोर्टयार्ड, आंगन। From the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद, वो जंप करके जाता है और मुराद के पीछे जाके बैठ जाता है। That year we lived at the edge of town, उस टाइम पे वो टाउन के एज किनारे पे रहते थे। On Walnut Avenue, कहाँ पे? Walnut Avenue, ये नेम है Walnut Avenue। Behind our houses was the country, country means रूरल एरिया, उनके घर के पीछे की साइड रूरल एरिया था। वाइन यार्ड, वाइन यार्ड मीन्स अंगूरों की बेलें। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स स्मॉल गार्डन। इरिगेशन डिचेस, डिचेस मीन्स ट्रेंच, खाई, सिंचाई ताल। एंड काउंट्री रोड्स, ये सब उनके घर के पीछे की साइड थे। इन लेस देन 3 minutes ही वर ऑन ओलिव एवेन्यू, और 3 minutes के अंदर वो कहाँ था? वो ओलिव एवेन्यू में था। ओलिव एवेन्यू भी नेम है। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब ये दोनों हॉर्स पे हैं और उनके एक्सपीरियंस बताया जा रहा है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। हॉर्स है वो रनिंग कर रहा है और उनको हवा बहुत ही फ्रेश लग रही है, न्यू लग रही है। The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. और उसका जो कजिन मुराद है जिसको कि सभी क्रेजी मानते हैं, वो सिंगिंग स्टार्ट कर देता है। I mean he began to roar. It means वो जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Here streak means nature, स्वभाव। अब हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी माना जाता है, तो उनकी फैमिली में मुराद को क्रेजी माना जाता था। बिफोर हिम वॉज अंकल खोसरो, मुराद से पहले क्रेजी किसको माना जाता था? अंकल खोसरो को। एन इनोर्मस मैन, अब यहाँ पे अंकल खोसरो को डिस्क्राइब कर रखा है कि वो किस टाइप के पर्सन है। वो इनोर्मस पर्सन है, मीन्स बहुत ही हट्टे खट्टे हैं वो। विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जैकी वैली, वो सैन जैकी वैली में सबसे बड़ी उसकी मूछें हैं।
ए मैन ऑफ सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एंग्री नेचर्ड है वो, सो इरिटेबल बहुत चिड़चिड़े हैं, सो इम्पेशेंट ही हैज लैक ऑफ पेशेंस, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वो इतने ऐसे पर्सन हैं कि किसी को भी बीच में बोलते हुए रोक सकते हैं एक बात बोल के। कौन सी? इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, ये उनका डायलॉग है। वो बात चाहे कुछ भी हो वो यही सेंटेंस बोलते हैं, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई भी किसी मैटर में बात कर रहा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसी बात को बोल देते हैं। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक, अरक सन ऑफ अंकल खोसरो। अब एक बार क्या होता है कि उसके सन अरक हैं, वो 8 ब्लॉक डिस्टेंस को कवर करके उसके पास जाते हैं टू द बार्बर शॉप। उस टाइम पे अंकल खोसरो बार्बर शॉप पे होते हैं, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैक ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। उस टाइम पे अंकल खोसरो हैं वो अपने मुस्टैक ट्रिम करवा रहे होते हैं, तो उनका सन अरक जाता है और ये कहता है कि आवर हाउस इज ऑन फायर, हमारे घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोर, वो एकदम से बैठता और क्या कहता है, चिल्लाता है, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। अब बार्बर उसको समझाता है कि सर योर सन इज सेइंग दैट योर हाउस इज ऑन फायर। सो खोसरो रोड इनफ इट्स नो हार्म। अब खोसरो दोबारा से चिल्लाता है, इट्स नो हार्म आई से। मीन्स मैटर कुछ भी है, आग लगने का मैटर है, उस टाइम पे वो क्या कहते हैं, इट्स नो हार्म। और आग भी कहाँ लगी है, खुद के घर में लगी है। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। उसका जो कजिन मुराद है वो इस अंकल खोसरो के नेचुरल डिसेंडेंट है, उनके वंशज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुराद अंकल खोसरो का सन है, ऐसा नहीं है। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब, मुराद के फादर का नाम जोराब है। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि एक प्रैक्टिकल मैन है। That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that didn't mean that he was also the father of his spirit. कोई भी व्यक्ति है वो किसी बच्चे का फादर तो हो सकता है, पिता तो हो सकता है, लेकिन उसकी स्पिरिट का फादर नहीं हो सकता। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious. Capricious means whimsical, doubt, sunky, and vagrant. Vagrant means wanderer, आवारा। और उनकी जो ट्राइब है उसमें इस टाइप के पर्सन मिलते हैं, किस टाइप के, जो कि कैप्रिसियस हैं और वैग्रेंट हैं। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह, अब वो दोनों राइडिंग करते हैं, मुराद गाता है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स। अब वो उस रूरल एरिया में है जहाँ पे उनके कुछ नेबर्स हैं, और जहाँ पे वो, और ऐसा मानना है लोगों का कि वो रियल में वहीं पे से ही बिलोंग करते हैं। We let the horse run as long as it felt like running, और हॉर्स जितना जैसे दौड़ सकता था वो उसको फ्री छोड़ देते हैं। At last my cousin मुराद said get down, I want to ride alone, और लास्ट में मुराद कहता है कि वो अकेले ही राइडिंग करेगा, तुम नीचे उतर जाओ। Will you let me ride alone, I asked, तो आराम पूछता है क्या तुम बाद में मुझे भी अकेले राइडिंग करने दोगे। That is up to the horse, my cousin said get down, ये हॉर्स पे डिपेंड करता है कि तुम्हें राइडिंग करने देगा या फिर नहीं करने देगा। No, you should get down, तुम्हें नीचे उतरना चाहिए। The horse will let me ride, I said, हॉर्स मुझे ये अलाउ करेगा, मुझे राइडिंग करने देगा। We shall see, he said, don't forget that I have a way with a horse, वो कहते हैं कि ठीक है देखेंगे, हॉर्स में अलाउ करेगा तो, बट मुझे तो मेरे अंदर तो ऐसी अप्रोच है कि मैं हॉर्स को डील कर सकता हूँ।
Well, I said, anyway, you have with a horse, I have also. अगर तुम हॉर्स को डील कर सकते हो तो मैं भी उसको हैंडल कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ. For the sake of your safety, he said, let's hope so. Get down. वो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसी होप करता हूँ कि तुम इसको हैंडल कर लोगे, अब नीचे उतरो. All right, I said, but remember, you have got let me try to ride alone. ठीक है, लेकिन याद रखना बाद में मैं भी अकेले राइडिंग करूंगा. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वजीरे रन. यहाँ पे वजीरे हॉर्स को बोला हुआ है. उसका जो कजिन मुराद था वो हॉर्स पे बैठता है, उसकी हील्स पे किक करता है और ये कहता है कि वजीरे रन. द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हाइंड लेग्स. हाइंड लेग्स मीन्स बैक लेग. हॉर्स अपने पीछे के पैरों पे खड़ा होता है. स्नोटेड हिनहिनाता है. एंड ब्रस्ट इनटू द फ्री ऑफ स्पीड. और पूरी स्पीड से वो दौड़ जाता है. That was the loveliest thing. और ये आराम को बहुत ही लवली लगता है, बहुत अच्छी चीज लगती है. I had ever seen. अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि what is loveliest thing for आराम. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब उसका जो कजिन मुराद है वो हॉर्स को ड्राई ग्रास के जो मैदान है, ग्राउंड है, उनमें से लेके जाता है. इरिगेशन डिच है वहां से लेके जाता है और उनको क्रॉस करते हुए वो 5 मिनट्स में वापस आ जाता है, लेकिन बिल्कुल ही वेट, बिल्कुल गीला है वो. द सन वॉज कमिंग अप मीन्स जो सन है वो दिन निकलता जा रहा है. नाउ इट्स टर्न टू राइड. आई सेड. वो कहता है कि अब मेरी टर्न है राइडिंग करने की. आराम कहता है यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. यहाँ तक के चैप्टर को आपको रीड करके देखना है. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप